Anyone? Okay, so in EASD, whatever ADC you were discussing, that was of kind dual slope ADC. Now we want to study again ADC inside the PEEK microcontroller, but remember the ADC inside the PEEK microcontroller is of type successive approximation type of ADC. So PEEK microcontroller has got ADC module. That module is supporting a successive approximation type of ADC. Now successive approximation type of ADC is there, that is fine. Now two things are there. Every ADC is having multiple channels. Multiple channels means at a time you can have multiple analog inputs connected to the ADC. Out of those multiple inputs, only one input will be considered at a time, and then its digital conversion will be done. Okay, so remember PEEK microcontrollers ADC has got 8 channels, and the output means digital output is of 10 bits. Again I repeat, 8 channels are available for this ADC of PEEK microcontroller, which is of type successive approximation type of ADC. As well, this has got, this ADC is 10 bit ADC. 10 bit ADC means what? Whenever you convert the data into digital data, that digital data conversion will be of 10 bits. The digital data conversion will be of 10 bits. Fine. So there is a 10 bit ADC and there are 8 channels available. Now one more operation it supports is you can have this analog to digital conversion in the sleep mode also. We will see this feature, analog to digital conversion in sleep mode also. Now we know that whenever you have some module available inside the microcontroller, there should be some special function registers used to deal with that module. There should be special function registers. Now first let us go for discussing which are the special function registers used for dealing with the ADC module. So when you want to deal with the ADC module, you will be dealing with these 4 basic special function registers. Again, can anyone tell, if I am doing digital conversion by PEEK ADC, how many bit output you get? PEEK माइक्रोकंट्रोलर का ADC कितने बिट का है? Anyone? जो पहले से ज्वाइंड है, just now we discuss 10 10 bits. bits. Correct. It 10 is 10 bits. bit ADC. See, now we know that our special function registers, जो भी special function registers है, वो data memory का part है, और data memory का हर एक लोकेशन जो है वो सिर्फ 8 बिट का है. तो अगर मेरा रिजल्ट 10 बिट का है, रिजल्ट डिजिटल कन्वर्जन जो 10 बिट का है और मेरा रजिस्टर सिर्फ 8 बिट का है, तो एक रजिस्टर सफिशिएंट नहीं होगा रिजल्ट स्टोर करने के लिए. एक रजिस्टर सफिशिएंट नहीं होगा रिजल्ट स्टोर करने के लिए. इसके लिए सो देयर आर टू स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कॉल्ड एज एनालॉग टू डिजिटल रिजल्ट हाई रजिस्टर and analog to digital conversion result low register. Analog to digital conversion result high register and low register. ये दो special function registers use किए जाते हैं result store करने के लिए. Then there is no bit format for these register. जो भी digital conversion है वो store किया जाएगा. Exactly कैसे store किया जाएगा फिर से हम देखेंगे. At this stage remember ये दो registers use किए जाते हैं, ADRESH, ADRESL. And the operation of the ADC is controlled by the two special function registers, which are here ADCON 0 and ADCON 1. Okay, so these are the 4 special function registers used. Out of that, these 2 registers are simple memory RAM locations.
So there is no format for these two, but these two registers has got bit format. Okay, so as we know that the ADC of the PEEK microcontroller is successive approximation type of ADC, and already we have seen such ADC in the 8051 microcontroller. We interface external ADC to the microcontroller. Okay, so now let us try to understand the bit format for these registers, so that we will use this ADC module for our lab experiment. Okay, so let us go for understanding the bit format for this ADCON 0 register. See, the bit formats are very simple. Okay, so once you understand bit format, easily you will understand the program also. Okay, now let us start with this ADCON 0 register. ADCON 0 register. Here the actually 3 bits are used for selecting the clock. We know that for successive approximation type of ADC we require clock signal. Now what will be that clock frequency? That clock frequency will decide the conversion time. Higher the clock frequency, lesser will be the conversion time. Now the clock frequency which will be available for the analog to digital conversion, it depends on 3 bit values. Out of that, 2 bits are present in ADCON 0 register and 1 bit is present in ADCON 1 register. ADCON 1 रजिस्टर का 1 बिट, ADCON 0 के 2 बिट्स, ये 3 बिट्स मिलके डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी फॉर दैट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. ओके, सो दैट विल एक्ट एज अ क्लॉक फॉर द डिजिटल कन्वर्जन. ओके, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज यहां पे दिया है कि ADCON 1 रजिस्टर का ADCS2 ये बिट है, ये अगर 0 है एंड देन ये 2 बिट्स अगर मैं 0 रखता हूं, मींस हियर आई कीप 0, हियर आई कीप 0, तो क्लॉक कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी रहेगा ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, or you may have oscillator frequency divided by 32. Like that you can have different clock frequencies for ADC. तो ये जो 2 बिट्स है ये क्लॉक सिलेक्शन के लिए यूज होंगे. Now as I discuss again, can you tell me how many channels are there in the for the ADC of PEEK microcontroller? How many channels are there? 8 channels are there. Very good. So out of 8, at a time 8 channels means 8 different analog inputs can be connected simultaneously, but you cannot have digital conversion of all those 8 analog inputs simultaneously. At a time one analog input is to be selected. Now you know that if 8 channels are there and out of that I have to select one line, one input. So how many select lines will be required? How many select lines will be required so that I can select one line from the 8 input? कितने select lines लगेंगे? 8 में से एक को select करना है. Anyone? कितने select lines लगेंगे? 3 select lines. Yeah, so 3 connect lines will be required. Okay, so next 3 bits are channel select bits. Next 3 bits are channel select bits. इससे clock select हो गया, इससे channel select हो गया. Okay, now if you recall 8051 माइक्रोकंट्रोलर को जो हमने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ऑफ ADC कनेक्ट किया था 0808. ओके, तो उसको जब कन्वर्जन स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन बोल के इनपुट देना पड़ता था, और जब कन्वर्जन कंप्लीट होता है तो ADC सिग्नल देता है एंड ऑफ कन्वर्जन. ये जो स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन एंड एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल्स होते हैं वो पीक माइक्रोकंट्रोलर के सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप का ADC के लिए यहां पे इंटरप्रेट किए गए हैं. मींस ये बिट क्या है? इट इज कॉल्ड एज गो ऑब्लिक डन बार. गो ऑब्लिक डन बार.
Let us try to understand what is the significance of this go oblique done bar. See, when you want to start conversion, user will write 1 here. When you want to start analog to digital conversion, user will write 1 here, means conversion will start. Conversion will start. On the same line, when the conversion is over, automatically the peak microcontroller will make this bit 0. See, this is go oblique done bar. Done bar bit अगर 0 है, इसका मीनिंग है कन्वर्जन इज ओवर. ओके, तो एसओसी एंड ईओसी दो अलग अलग पिन के फंक्शनैलिटी यहां पे सिर्फ एक बिट में उन्होंने लाए हैं. तो गो ऑब्लिक डन बार बिट से डील कैसे करोगे? आपको कन्वर्जन जब स्टार्ट करना है तो गो बिट को 1 करो, एंड आपको पता कैसे चलेगा? ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ऑफ एडीसी है. इट विल टेक सम टाइम फॉर गेटिंग द इट विल टेक सम टाइम फॉर कन्वर्टिंग द डेटा. तो कन्वर्जन खत्म हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आई विल चेक अगेन दिस बिट. ये मैंने 1 कर दिया था कन्वर्जन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इस बिट को माइक्रो कंट्रोलर 0 बनाएगा जब उसका कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है. तो इजीली यू कैन पोल फॉर दिस फॉर चेकिंग वेदर कन्वर्जन इज ओवर और नॉट. ओके, एंड देन ये बिट अनयूज्ड है. ये जो बिट है एडी ऑन मॉड्यूल, जैसे ये आपको फैन का स्पीड चेंज करना है सपोज आपके रूम में. ओके, अभी ये समर सेशन है तो सबके फैंस ऑन ही रहेंगे. आपको स्पीड चेंज करना है, ये आपके फंक्शनैलिटीज फंक्शंस आपको चेंज करने हैं. लेकिन ये सब करने के लिए आपको मालूम है सबसे पहले फैन का स्विच ऑन होना चाहिए. सब पहले फैन तो ऑन होना चाहिए, तो ये स्पीड चेंज होगा. लाइक दैट एडीसी का मॉड्यूल आपको कॉन्फ़िगर करना है. ये सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये मॉड्यूल ऑन होना चाहिए. तो दिस इज ऑन. It's like virtual on switch for the ADC module. Are you getting the significance of the bit formats for ADCON 0 register? Is it clear? Very simple. Yes, sir. Yes. 2 bits for clock selection, 3 bits for channel selection. एक है go oblique done bar जो start of conversion and end of conversion को कंट्रोल करता है, और एक है AD on. It's like just switch for the ADC module. Okay, so this is quite simple register called as ADCON 0. So one more register is there, ADCON 1, ADCON 0, ADCON 1. These are the 2 registers used for controlling the operation of the ADC. ADCON 1 is also very simple register. So let us try to understand now this ADCON 1 register. ADCON 1 register. Okay, now as I said, हमने क्लॉक सिलेक्शन के लिए बोला था कि एक बिट एडीकॉन 1 का यूज किया जाता है, तो ये बिट यूज किया जाता है एडीकॉन 1 रजिस्टर का. एडीसीएस 2 बिट, एडीसीएस 2 बिट ये यूज किया जाता है. ओके, नाउ दिस एडीएफएम स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन रिजल्ट फॉर्मेट सिलेक्ट बिट. ओके, we will see with the diagram कि ADFM का यूज क्या है. ADFM का यूज क्या है? At this stage just remember ADFM को 1 करेंगे तो रिजल्ट रहेगा राइट जस्टिफाइड. ADFM को 0 करोगे तो रिजल्ट रहेगा लेफ्ट जस्टिफाइड. ओके, अभी ये जस्टिफाइड ये जो है दिस इज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द बिट्स. आपने MS वर्ड कभी यूज किया है तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं. अगर कुछ टेक्स्ट आपने टाइप किया है तो उस टेक्स्ट को आप जस्टिफाई कर सकते हो. एक ऑप्शन रहता है, दूसरा रहता है लेफ्ट जस्टिफाइड, तीसरा रहता है राइट जस्टिफाइड, और एक ऑप्शन रहता है सेंट्रल. ओके, एंड इफ यू रिकॉल कि एग्जैक्टली होता क्या है जब आप लेफ्ट जस्टिफाई करते हो और राइट जस्टिफाई करते हो. कैन एनीवन टेल होता क्या है जब लेफ्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट होता है या राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट होता है? तो होता क्या है उससे? पेज के राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर को जाता है पैराग्राफ. राइट. सो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, अगर मैं लेफ्ट जस्टिफाइड करता हूं तो हर एक
लाइन जो है वो लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होगी, राइट साइड में वो कहीं पे भी एंड हो सकती है, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड साइड में हर एक लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर एकदम अलाइन दिखेगा, लाइक दैट राइट जस्टिफाइड होता है। ओके और कभी कभी आपको सेंटर चाहिए तो सेंट्रल जस्टिफाइड भी होता है, लेकिन यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो राइट जस्टिफाइड एंड लेफ्ट जस्टिफाइड। ओके अभी यही पे हम ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई टू चेक कि एडीएफएम बिट का यूज क्या होता है, कैसे यूज होता है। ओके सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस यूज ऑफ एडीएफएम। ओके राइट, ये देखो अभी हमने बोला था कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का रिजल्ट जो है वो 10 बिट का होता है। अभी 10 बिट एक स्पेशल फंक्शन में रजिस्टर में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स लगेंगे। तो ADRESH एंड ADRESEL ये दो रजिस्टर्स यूज करेंगे, लेकिन देखो दो रजिस्टर में मिला के हमें बिट्स मिलेंगे 16, हमें चाहिए 10 बिट्स, तो 10 बिट्स एक रजिस्टर में नहीं बैठ सकते, इसलिए दो रजिस्टर यूज किए, लेकिन दो रजिस्टर यूज किए तो 16 बिट्स मिले। अभी वो 16 बिट्स में हमारा 10 बिट डेटा हम फिट कैसे करेंगे, 10 बिट डेटा कैसे फिट करेंगे। ओके तो इफ इट इज ADFM इज इक्वल टू 1, ADFM इज इक्वल टू 1, ऐसा अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो ADCON 1 रजिस्टर में, तो जो आपका कन्वर्जन है उसके लोअर ऑर्डर 8 बिट्स जो है, लोअर ऑर्डर 8 बिट्स जो है वो रहेंगे ADRESH में, यहां पे लोअर ऑर्डर 8 बिट्स रहेंगे। अभी बचे 2 बिट्स, वो जो रिमेनिंग 2 बिट्स है, दोस 2 बिट्स विल बी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ADRESH। आर यू गेटिंग? और उसके ये जो रजिस्टर है 8 बिट का, इसके 2 बिट्स हमने यूज किए, तो रिमेनिंग जो बिट्स है उसके हो जाते हैं 0 0। ओके अभी ये देखो कि इसको बोलते हैं राइट जस्टिफाइड, तो ये जो टेक्स्ट, ये जो डिजिटल कन्वर्जन है, ये इस साइड में, राइट साइड में कहां पे स्टोर हो रहा है, ये राइट साइड जस्टिफाइड, इस साइड में, लाइक दिस इट इज गेटिंग स्टोर, यहां पे लीस्ट सिग्निफिकेंस बिट, और ये 10th बिट जो है वो यहां पे आएगा। This is called as right justified. Like that you can have left justified text. अभी लेफ्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट कैसे रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे कि जो 10 बिट रिजल्ट है उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स सिर्फ यहां पे रहेंगे, यहां पे 2 बिट्स रहेंगे, एंड रिमेनिंग 8 बिट्स जो है वो यहां पे रहेंगे, रिमेनिंग 8 बिट्स यहां पे रहेंगे। ओके मींस अगर आप बिट को नेम करते हो D0, D1, D2, D3 लाइक दैट अप टू D9, तो यहां पे देखो, यहां पे रहेगा आपका D0, D1, D2, D3 अप टू यहां पे D7, D8 बिट यहां पे रहेगा, D9 बिट यहां पे रहेगा। लेकिन अगर लेफ्ट जस्टिफाइड आपका रिजल्ट है तो यहां पे D0 रहेगा, यहां पे D1 रहेगा, ओके यहाँ पे D2 रहेगा, D3 रहेगा, D4 लाइक दैट, यहाँ पे D9 रहेगा, so like that the result will be stored. Are you getting this ADFM bit? Now if you are getting this ADFM bit, now you answer my question. Suppose the conversion of ADC is 10 bit, but because of limitations, what I want is I want 8 bit result to be used. ओके तो आपका आपका डेटा 10 बिट का है, डिजिटल कन्वर्जन 10 बिट का है, लेकिन आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो डिजिटल डेटा चाहिए वो सिर्फ 8 बिट का चाहिए, मींस आई वांट टू निग्लेक्ट 2 बिट्स, 2 बिट्स निग्लेक्ट करने हैं। सो कैन यू टेल मी कौन से बिट्स आप निग्लेक्ट करोगे, या इन अदर वर्ड्स कौन सा जस्टिफाइड अरेंजमेंट रहेगा, सो दैट जो एक ही रजिस्टर में यूज करूंगा तो दैट विल बी सफिशिएंट। Are you getting my question? Right justified. Which one? Justified. Right justified or left justified?
कौन सा डिजिट आप कौन से बिट्स आप निग्लेक्ट करोगे उसका सी विच बिट्स टू बी निग्लेक्टेड will be the bits which has least significance. See एक एग्जांपल सपोज आपको आपका रिजल्ट आया एक एग्जाम आपने दिया उसका रिजल्ट आया ओके आपका रिजल्ट जो है वो सपोज 87.52 है परसेंट 87.52% है आप कितने डिजिट बोल रहे हो 4 डिजिट बोल रहे हो 87.52 अभी मैंने बोला कि नहीं 4 डिजिट में नहीं 3 डिजिट में ही आपका रिजल्ट बोलो 3 डिजिट में ही आपका रिजल्ट बोलो तो एक बिट आपको निग्लेक्ट करना चाहिए ओके तो दो स्टूडेंट को बोला कि एक बिट निग्लेक्ट करके 3 डिजिट में ही आपका रिजल्ट बोलो एक ने क्या कर दिया रिजल्ट बोल दिया 7.52 क्योंकि उसने निग्लेक्ट क्या कर दिया 8 और दूसरे ने बोल दिया 87.5 उसने निग्लेक्ट क्या कर दिया 2 तो किसका रिजल्ट मोर करेक्ट है जिसने 2 निग्लेक्ट किया उसका रिजल्ट करेक्ट है या जिसने 8 निग्लेक्ट किया उसका रिजल्ट करेक्ट है मोर करेक्ट 87.5 राइट 87.5 so which should be neglected is least significant bit जिसका सिग्निफिकेंस 87.52 में 2 का सिग्निफिकेंस सबसे कम है 8 का सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है स्कूल में पढ़ा था ना यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस राइट तो लाइक दैट ये बाइनरी नंबर में भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का सिग्निफिकेंस ज्यादा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का सिग्निफिकेंस कम है तो अगर हमें 8 बिट रिजल्ट कंसीडर करना है तो सबसे कन्वीनियंट अप्रोच क्या रहेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स निग्लेक्ट करो दो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निग्लेक्ट करो तो जब अगर आप यहां पे देख रहे हो ये कॉन्फ़िगरेशन तो यहां पे ये जो दो बिट्स आते हैं वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ही आते हैं तो अगर आपको 8 बिट रिजल्ट चाहिए मैं ये डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा वी विल मेक इट लेफ्ट जस्टिफाइड और लेफ्ट जस्टिफाई करके सिर्फ ADRESH को हम यूज करेंगे ये जो दो बिट्स है इसको हम निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 8 बिट रिजल्ट चाहिए आर यू गेटिंग सो डज इट मेक सम सेंस कि ये क्या होता है ADFM इट इज अ फॉर्मेट सिलेक्ट बिट ये अगर आप 1 करते हो तो द टेक्स्ट इज द रिजल्ट इज राइट जस्टिफाइड ये अगर 0 करते हो तो रिजल्ट इज लेफ्ट जस्टिफाइड ओके getting this Yes, sir. okay so now if you are getting this now things are now again let us complete this ADCON1 रजिस्टर का फॉर्मेट तो ये आपको जो है राइट जस्टिफाई या लेफ्ट जस्टिफाई करते हैं ये क्लॉक सिलेक्शन के लिए नाउ सी ये जो 4 बिट्स है these 4 bits can take 16 different values ओके एंड उसके हर एक बिट कॉम्बिनेशन का अलग अलग सिग्निफिकेंस है उसके हर एक बिट कॉम्बिनेशन का अलग अलग सिग्निफिकेंस है ओके सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इसके जो बिट्स है इसका सिग्निफिकेंस क्या है ओके तो ये टेबल है अभी ये टेबल देख के डरने का नहीं है इतना टेबल ये क्या लिखा है क्या है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चलो ये काम करते हैं ये एडीसी मॉडल ऑप्शन ही ये एडीसी मॉडल ऑप्शन में ही रख देते हैं ऐसा तो नहीं कर सकते जिस स्टूडेंट ने एडीसी मॉड्यूल ऑप्शन में रख दिया समझ लो उसके प्रैक्टिकल ओरल एग्जामिनेशन में उसको जो प्रैक्टिकल आएगा वो एडीसी का ही आएगा ओके तो ये टेबल सिर्फ समझ के ले लो इसका सिर्फ एक रो हम यूज करने वाले हैं ओके इसका सिर्फ एक रो हम यूज करने वाले ठीक है तो ये रो का सिग्निफिकेंस इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके सो एक पर्टिकुलर रो मैं कंसीडर करता हूं इज इट विजिबल नाउ
दिख Yes, रहा है sir. क्या है इस रो में? Yes, sir. अभी हमने ये PCFG बिट 0000 कर दिए। ओके, अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे क्या होगा, आपके जो 8 एनालॉग चैनल्स हैं, सारे जो चैनल्स है एनालॉग इनपुट बोल के एक्ट होंगे, एनालॉग इनपुट बोल के एक्ट होंगे। बट यू नो दैट इट्स नॉट लाइक हर एक एम्बेडेड सिस्टम में आपको 8 एनालॉग इनपुट रहेंगे। तो इट शुड नॉट हैपन दैट एडीसी मॉड्यूल यूज किया तो ये सारे जो पोर्ट है एनालॉग इनपुट ही बोल के एक्ट होंगे। सी सपोज सपोज मेरे पास सिर्फ एक एनालॉग इनपुट है, मेरे पास सिर्फ एक एनालॉग इनपुट है, तो आप ये पर्टिकुलर रो चेक करो और आपको दिखेगा कि AN0 जो है ये सिर्फ एनालॉग लाइन बोल के है एंड ऑल अदर पिन्स कैन बी यूज एज डिजिटल आईओ। मींस बाकी के पिन आईओ पोर्ट बोल के आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक एनालॉग इनपुट है तो एक चैनल सफिशिएंट है। मॉड्यूल में 8 दिए मींस इसका मीनिंग ये नहीं कि सारे यूज करो, आपको जितने लगते हैं उतने यूज करने। तो मेरे पास सिर्फ एक एनालॉग इनपुट है तो मैं ये कॉन्फ़िगर करूंगा 1110। ओके, तो इससे क्या होगा, सिर्फ AN0 जो है, AN0 ये एनालॉग इनपुट बोल के एक्ट होगा। ओके, आर यू गेटिंग? ये समझ में आ रहा है? तो आपके जो चैनल्स है उसमें कौन से पिन आपको एनालॉग चाहिए, कौन से पिन डिजिटल, एक पिन एनालॉग चूज कर दिया तो दूसरा डिजिटल होगा या रेफरेंस बोल के यूज होगा। ओके, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दीज 4 बिट्स। ओके, ये टेबल आपको दिख रहा है ठीक तरह से। एक सजेशन आपको है, व्हेन यू आर व्यूइंग द थिंग्स इन योर मोबाइल फोन, आपका जो मोबाइल फोन है वो लैंडस्केप मोड में रखो, रोटेट करके रखो, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए उसका, then the things will be more what we can say clearly visible। लैंडस्केप मोड में है या सीधा रखा है फोन या लैंडस्केप रखा है, Sir, चेक करो। landscape में है। ओके ओके, सो स्टूडेंट ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, उनको बताना मेरी ही गलती है, आपने लैंडस्केप ही रखा है तो वेरी गुड। अगर गलती से किसी ने सीधा रखा है तो वो भी लैंडस्केप कर दो, द थिंग्स विल बी मोर क्लियरली विजिबल। ओके, ठीक है ना, ये समझ में आया कि ये जो बिट्स, इतने सारे बिट्स क्या है। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन हम कंपेयर करते हैं, इससे क्या होगा, ये सारे एनालॉग चैनल्स है, मींस अगर मेरा एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें मेरे पास 8 एनालॉग इनपुट्स है तो उसका डिजिटल कन्वर्जन करने के लिए मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन 0000 ही करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा एप्लीकेशन है, मेरे पास सिर्फ एक एनालॉग इनपुट है, एक एनालॉग इनपुट है, तो इंस्टेड ऑफ रिजर्विंग ऑल 8 पिंस, एक ही पिन यूज करो, रिमेनिंग पिन्स कैन बी यूज फॉर डिजिटल आईओ। तो ये जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो इसका हिसाब जो है ना लास्ट कॉलम में आ रहा है, देखो कि हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए चैनल्स कितने मिलेंगे। ओके, हर एक के लिए चैनल्स कितने मिलेंगे एंड रेफरेंस के लिए कितने पिंस यूज होंगे, ये यहां पे दिया है। अभी रेफरेंस का क्या है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे देखो सारे एनालॉग इनपुट है तो 8 चैनल्स रहेंगे। यहां पे देखो 7 एनालॉग इनपुट्स है तो 7 चैनल्स रहेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 रहेगा, लाइक दैट। ये फर्स्ट पार्ट जो है कितने एनालॉग चैनल्स है। ओके, वन मोर थिंग इज, जब हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन यूज कर रहे हैं तो प्लस वी रेफरेंस एंड माइनस वी रेफरेंस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अगर मैंने माइनस वी रेफरेंस 0 रख दिया एंड प्लस वी रेफरेंस 5 वोल्ट रख दिया, तो जब 0 वोल्ट एनालॉग इनपुट आता है तो उसका डिजिटल कन्वर्जन 0 0 रहेगा, ऑल बिट 0 रहेगा। और जब 5 वोल्ट एनालॉग इनपुट आता है, 5 वोल्ट एनालॉग इनपुट आता है तो सारा कन्वर्जन रहेगा, ऑल बिट्स विल बी 1। ओके, नाउ द थिंग इज, इसके लिए प्लस वी रेफरेंस एंड माइनस वी रेफरेंस क्या यूज करने हैं, ये डिफॉल्ट माइक्रो कंट्रोलर के जो सप्लाई वोल्टेजेस है 5 वोल्ट एंड 0 ये करने हैं तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। नहीं, लेकिन किसी को लगा कि हमारे एम्बेडेड सिस्टम में प्लस 3 वोल्ट शुड बी द प्लस वी रेफरेंस, तो वो क्या कर सकता है, एट दैट टाइम ये कॉन्फ़िगर करो, ये कॉन्फ़िगर करो, तो आपको चैनल 7 मिलेंगे, लेकिन ये जो AN3 पिन जो है, AN3 पिन
यहाँ पे आप आपका एक्सटर्नल वी रेफरेंस वोल्टेज कनेक्ट कर सकते हो। तो एक पिन जो है रेफरेंस वोल्टेज के लिए यूज की गई। ओके, एक 8 पिन का हिसाब है, 8 में से एक रेफरेंस के लिए चले गए तो चैनल कितने रहे 7। तो ये हिसाब यहाँ पे 7 चैनल एक रेफरेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे यहाँ पे देखो ये चैनल्स 5 है, लेकिन रेफरेंस के लिए नहीं यूज किए। ये जो रिमेनिंग 3 पिन है डिजिटल के लिए यूज किए। फाइन। अभी कैन एनीवन एक्सप्लेन मी ये पर्टिकुलर रो क्या है? ओके, एंड देन वी विल प्रोसीड। ये कब हम यूज करेंगे? 1000, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कितने चैनल्स है, कितने पिन रेफरेंस के लिए यूज किए, कितने एनालॉग पिन है, कितने डिजिटल पिन है, डिजिटल आईओ पिन है? हु विल टेल? पार्टिसिपेंट्स? वॉलंटरीली कोई नहीं बता रहा है तो मैं चूज करूंगा। Six analog pins. Who Two is pins are speaking? used for Sabha reference. is speaking. Okay, so please speak loudly. Six analog pins and Right, two pins are used for reference. right, AN2 and AN3. right. Digital pins are not available here. ना, ये right. Digital pins available नहीं है यहाँ पे. Yes, sir. Okay, correct. So please mute your mic. So ये जो है इससे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं। एट अ टाइम हम सिर्फ एक यूज करेंगे। ओके, तो जो पिंस है वो एनालॉग बोल के यूज करने हैं या डिजिटल बोल के यूज करने हैं या रेफरेंस बोल के यूज करने हैं। आपको रेफरेंस क्या चाहिए? माइक्रो कंट्रोलर का जो अवेलेबल है +50 वोल्ट चाहिए या आपको कुछ अलग रेफरेंस चाहिए, तो उसके हिसाब से ये सारे बिट्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, आर यू गेटिंग दिस? ADCON 0, ADCON 1 रजिस्टर फॉर्मेट? Yes, sir. ओके, सो ये अगर आपको समझ में आ गया तो नाउ द प्रोग्रामिंग पार्ट इज वेरी इजी। द प्रोग्रामिंग पार्ट इज वेरी इजी। बिफोर दैट लेट अस डिस्कस कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो ये डेटा शीट मैं जो रेफर कर रहा हूं ये डेटा शीट है। तो डेटा शीट में उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि जब आपको ये कन्वर्जन करना है तो ये स्टेप्स फॉलो करो। ओके, तो वी विल चेक ये स्टेप्स और ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप है कि एडीसी मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करो। ओके, फाइन। अभी फर्स्ट स्टेप जो है एडीसी मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करो, मींस उसको बताओ कि आपको क्या यूज करना है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करना है? उसमें एडीकॉन 1 रजिस्टर से क्या सिलेक्ट करोगे? एनालॉग पिन कौन से होंगे, डिजिटल पिन कौन से होंगे, वोल्टेज रेफरेंस क्या रहेगा, ये सारी चीजें एडीकॉन 1 से सिलेक्ट करनी है जो अभी हमने डिस्कस की। उसके बाद चैनल सिलेक्ट करो। एट अ टाइम एक ही एनालॉग इनपुट का कन्वर्जन कर सकते हो तो चैनल सिलेक्ट करो, कौन से चैनल का आपको कन्वर्जन करना है। नेक्स्ट स्टेप इज क्लॉक सिलेक्ट करो। व्हाट विल बी द क्लॉक फॉर एडीसी कन्वर्जन? because this clock plays important role, as I said this clock will decide the conversion time. ओके, और उसके बाद जो है आपका एडीसी मॉड्यूल ऑन करो। एडीसी मॉड्यूल ऑन करो मींस ऑन करने से पहले उसको आपने बता दिया कि कौन से पिन एनालॉग रहेंगे, कौन से डिजिटल रहेंगे, कहां पे रेफरेंस रहेगा, क्या क्लॉक रहेगा, कौन से चैनल का कन्वर्जन करना है, ये सारी चीजें हमने उसको बता दी। ओके, सो नाउ with this what we can say configuration of the ADC module. The second step जो है वो इंटरप्ट, अगर आपको इंटरप्ट यूज करना है तो उसके लिए है। तो वी नो दैट इंटरप्ट अगर यूज करना है एडीसी का तो पहले क्या होना चाहिए? ग्लोबली दैट इंटरप्ट शुड बी एनेबल। देन ये एडीसी का इंटरप्ट पेरिफेरल इंटरप्ट का पार्ट है तो पीआई बिट शुड बी सेट।
उसके बाद एडीसी का इंटरप्ट का एनेबल बिट सेट होना चाहिए एंड देन एडीसी का इंटरप्ट फ्लैग बिट क्लियर करके रखो। ओके, एडीआईएफ, सी देयर आर टू वेज बाय विच यू कैन चेक कि कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है या नहीं। जब आप गो बिट को 1 करके कन्वर्जन स्टार्ट करते हो तो देयर आर टू वेज टू चेक कि कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है नहीं। कैसे? एक वे क्या है कि गो ऑब्लिक डन बार बिट को पोल करो, वो बिट 0 हो जाता है। ओके, व्हेन द कन्वर्जन इज कंप्लीट द बिट विल बिकम 0। एंड सेकंड थिंग इज ADIF flag bit will be set whenever the conversion is complete। जब भी कन्वर्जन कंप्लीट होता है ये ADIF फ्लैग बिट सेट होता है। ओके, तो अगर इंटरप्ट डिजायर्ड है तो ये सारी चीजें करनी है। हमारे प्रोग्राम में हम इंटरप्ट नहीं यूज करेंगे, फिर भी ये फ्लैग बिट यूज करेंगे चेक करने के लिए कि कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है या नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेट फॉर द रिक्वायर्ड एक्विजिशन टाइम। एक्विजिशन टाइम के लिए वेट करो। ओके, तो वेट क्यों करना है? क्योंकि हर एक सेंसर को मींस अगर सेंसर आप इनपुट दे रहे हो एनालॉग वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर को दे रहे हो जिसका डिजिटल कन्वर्जन करना है तो एटलीस्ट फॉर सम टाइम कॉल्ड एज एक्विजिशन टाइम वो एनालॉग इनपुट वहां पे रहना चाहिए। ओके, थिंक ऑफ कि थर्मामीटर यूज करते हैं अगर किसी को टेम्परेचर है। ओके, अभी होप ये करेंगे कि किसी को भी टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए अगर किसी को टेम्परेचर है और अभी टेम्परेचर उसको बॉडी टेम्परेचर है फ्यू है तो उसको चेक करना है कि उसका टेम्परेचर कितना है, इसलिए हमने टेम्परेचर सेंसर मींस थर्मामीटर यूज किया। ओके, और थर्मामीटर कैसे यूज करते हैं आपको मालूम है, लेकिन एक पर्सन ने यूज कैसे किया? टेम्परेचर सेंस करना है उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अभी बॉडी को टच नहीं किया तो थर्मामीटर कौन सा टेम्परेचर दिखाएगा? रूम टेम्परेचर दिखाएगा। ओके, और उसने क्या कर दिया? सिर्फ बॉडी को टच कर दिया और छोड़ दिया और चेक करा है कि टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर बॉडी का दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ओके, कि आपको बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको सेंस करना है उस थर्मामीटर में तो उसको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, एक्विजिशन टाइम इसको बोलते हैं। ओके, तो आप क्या करते हो कि वो टेम्परेचर थर्मामीटर आपके बॉडी के कांटेक्ट में फ्यू सेकंड्स के लिए एटलीस्ट रखते हो एंड देन यू चेक द टेम्परेचर एंड दैट विल बी योर बॉडी टेम्परेचर। गेटिंग दिस? सो ये जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं एक्विजिशन टाइम। तो उतने टाइम तक वो एनालॉग इनपुट होना चाहिए तो ही उसका डिजिटल कन्वर्जन कर पाएंगे। ओके, ये हो गया। एक्विजिशन टाइम तक वेट करो सो दैट दैट एनालॉग इनपुट वोल्टेज विल बी अवेलेबल एंड देन द थिंग इज अभी क्या करना है? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप का एडीसी है तो पहले क्या करो? कन्वर्जन स्टार्ट करो, गो ऑब्लिक डन बार बिट उसको सेट करो, कन्वर्जन स्टार्ट होगा और चेक करो कि कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है या नहीं। वो कैसे चेक करोगे? तो यू कैन पोल कि गो ऑब्लिक डन बार बिट को पोल कर सकते हो, कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हो, या एडीसी के इंटर फ्लैग बिट को चेक कर सकते हो। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दैट, कोई भी एक यूज करो। और एक बार यहां से आपको सिग्नल मिला कि कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है, कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है, तो जस्ट थिंग इज आपके पास रिजल्ट है। वो रिजल्ट आपको जो भी कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट जस्टिफाइड या लेफ्ट जस्टिफाइड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन टेक द रिजल्ट इन द these two registers, ADRESH and ADRESL registers। ओके, और एक बार ये रिजल्ट आ गया तो अगर आपको नेक्स्ट कन्वर्जन करना है तो लूप लिखेंगे, अदरवाइज एक कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। कंटिन्यूअस कन्वर्जन चाहिए तो इसको लूप रखेंगे एंड लूप विल बी अगेन फॉर दिस व्हाट वी कैन से ये यहां तक ये क्लियर एडीआईएफ अगर इंटरप्ट यूज कर रहे हो तो। सो फिर से फ्लैग क्लियर करो, वेट करो एक्विजिशन टाइम के लिए, कन्वर्जन स्टार्ट करो। कन्वर्जन स्टार्ट करने के बाद कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है नहीं ये चेक करो, और कन्वर्जन अगर कंप्लीट हुआ है तो रिजल्ट रीड करो। Okay, so these are the steps you need to follow when you want to do the analog to digital conversion। Okay, so are you getting these steps? ये data sheet में है, later you can refer these things। So these are the steps।
Okay, so with this you will understand now the program for ADC, making the use of ADC. So shall we start with the programming part? अभी इसमें अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है, कोई डाउट्स है तो पूछो. Anyone having any doubt? No, sir. No, Mithali, sir. Mithali Sakre is there. Mithali, any doubt? Are you getting? Mithali, are you there? ओके, सो ऑडियो नहीं आ रहा है तो ये दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो मिताली के ऑडियो में प्रॉब्लम है, माइक में प्रॉब्लम है, और दूसरा पॉसिबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है कि ऑडियो मीटिंग ऑन कर दिया, ऑडियो वीडियो ऑफ है और बाकी काम कर रहे हैं कुछ तो अलग. उसका कुछ यूज नहीं होगा. ओके, किसी को कुछ डाउट है अभी जो डिस्कस किया उसमें? No, sir. No, sir. सब समझ में आ गया? तो अभी कुछ डाउट है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप रीड करो, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. अगर आपके पास कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में भी लिखो, आई विल ट्राई टू आंसर इट. ओके, so now we will go for the programming part. So now shall we switch to the programming part? Yes, sir. Okay, Sir. so we will use this MPLAB XID. so already ये MPLAB XID में मैंने प्रोजेक्ट करके रखा है. ओके, तो उसमें ADC प्रोजेक्ट है. I will just open that ADC part. Okay, so assembly language program है. So these things already many times we have discussed. ये configuration word, ये hash include कहाँ से आता है. Okay, so go to start और यहाँ से हम discussion start करेंगे. Okay, अभी before that you should understand कि how we are going to check the output. Okay, हमें output कैसे check करना है digital conversion का. See, this is the hardware interfacing we will use, जिसमें ADC का आउटपुट चेक करने के लिए क्या कन्वर्जन है, उसमें 8 बिट्स कन्वर्जन हम चेक करेंगे. और 8 बिट कन्वर्जन चेक करने के लिए वी विल कनेक्ट 8 LEDs टू द पोर्ट पिन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर. ओके, तो इज इट विजिबल नाउ? ये देखो, जो आपको एनालॉग इनपुट कनेक्ट करना है ये RA0 पिन को कनेक्टेड है, पोर्ट ए पिन नंबर 0. सिर्फ एक ही एनालॉग इनपुट है हमारे पास, तो ये मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं, जो कि मैं रन टाइम में ये चेंज कर सकता हूं. जो भी एनालॉग वोल्टेज है ये मैं चेंज कर सकता हूं. ओके, एंड देन जो भी डिजिटल कन्वर्जन होगा, वो हमें चेक करने के लिए यहाँ पे हमने 8 LEDs कनेक्ट किए है. तो सपोज डिजिटल कन्वर्जन 0 है तो सारे LEDs ऑफ रहेंगे.
जैसे जैसे एनालॉग इनपुट बढ़ता जाएगा, ओके, बेस्ड ऑन द एनालॉग इनपुट वोल्टेज, ये एलईडी जो है ऑन होते जाएंगे, मींस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड से वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड तक ये ऑन होते जाएंगे। एंड एट वन इंस्टेंस, सपोज मैंने ये जो है 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, ये 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, तो आई विल ऑब्जर्व दैट ये सारे जो एलईडीज है ये ऑन रहेंगे। ओके, दैट इज व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन। तो एक एक पोर्ट को आपने एलईडीज कनेक्ट किए तो 8 बिट्स है एक पोर्ट को, तो 8 बिट आउटपुट हम सिर्फ कंसीडर करेंगे। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 एलईडीज कनेक्ट किए हैं। आर यू गेटिंग दिस इंटरफेस डायग्राम? एनालॉग इनपुट कहां पे कनेक्ट करना है, कैन एनीवन टेल? कौन से पोर्ट को कनेक्टेड है एनालॉग इनपुट? To which port analog input is to be connected? Anyone? Anyone? A. Port A. Very good. Port A के that too पिन नंबर 0 RA0 को एनालॉग इनपुट कनेक्ट करना है, ठीक है। और जो डिजिटल आपका कन्वर्जन रहेगा वो कहां पे आउटपुट करना है, कौन से पोर्ट पे? D. पोर्ट Port डी, D. करेक्ट। तो पोर्ट डी जो है आपको आउटपुट बोल के कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एंड ये RA0 जो है ये आपको इनपुट बोल के कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो ये इतने पिंस हम यूज करेंगे। नाउ लेट अस कम टू द कोड पार्ट। ये देखो, तो सबसे पहले ये बैंक सिलेक्ट पोर्ट डी कर दिया, ओके, तो बैंक 0 सिलेक्ट हो गया। CLRF पोर्ट डी, तो पोर्ट डी हमने क्लियर कर दिया, मींस जो आपके सारे एलईडी जो है वो सारे इनिशियली ऑफ ही रहेंगे, ठीक है। नाउ दीज टू इंस्ट्रक्शंस, इससे हम एडीसी मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जिसमें ये जो फर्स्ट बिट्स है, ये जो बिट्स है, ये 2 बिट्स और एडीकॉन 1 का बिट, ये मिला के डिसाइड कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ये ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 8, ये क्लॉक रेट से कन्वर्जन होगा। एंड एडी ऑन बिट, ये जो है ये बिट 1 रख रहा हूं, तो एडीसी मॉड्यूल आपका ऑन हो जाएगा। तो ये बिट कॉम्बिनेशन एडीकॉन 0 में आप लिख रहे, तो ऑटोमेटिकली एडीसी को पता चलेगा कि मॉड्यूल को ऑन करना है, क्लॉक यूज करना है, ऑसिलेटर डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट इज आपको पोर्ट डी पे आउटपुट चाहिए, ओके, इसके लिए बैंक सिलेक्ट ट्रिस डी किया है, बैंक सिलेक्ट ट्रिस डी, ये डायरेक्शन सिलेक्ट रजिस्टर है, एंड CLRF ट्रिस डी किया है। इससे क्या होगा, पोर्ट डी विल बी कॉन्फ़िगर्ड एज आउटपुट पोर्ट, क्योंकि वहां पे हमने एलईडीज कनेक्ट किए तो आउटपुट बोल के कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो ट्रिस डी CLRF से क्या होगा, पोर्ट डी आउटपुट बोल के कॉन्फ़िगर होगा। नाउ लेट अस डील विद द एडीकॉन 1 रजिस्टर। एडीकॉन 1 में क्या कर दिया है कि वी वांट लेफ्ट जस्टिफाइड रिजल्ट, क्योंकि 8 बिट रिजल्ट ही चाहिए, 2 बिट निगलेक्ट करने हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निगलेक्ट होने चाहिए, तो रिजल्ट को हम रखेंगे लेफ्ट जस्टिफाइड। ओके, तो लेफ्ट जस्टिफाइड रिजल्ट है, एंड जो सिलेक्शन है ये देखो, ये जो बिट्स है 1110, एडीकॉन 1 के बिट्स है 1110। फिर से देखेंगे 1110 से होता क्या है, 1110 जब आप लिखते हो, ये देखो ये कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है, तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक चैनल एनालॉग के लिए यूज होगा, बाकी सारे डिजिटल के लिए आप यूज कर सकते हो। जो रेफरेंस वोल्टेजेस है वो जो माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्टेड है वही यूज किए जाएंगे। तो कितने चैनल्स यूज किए,
1, रेफरेंस के लिए कितने पिंस यूज किए, 0। ठीक है, तो ये जो है ये हमने कोड में यहाँ पे लिखा है और वो वैल्यू एडीकॉन 1 में डाली। ओके फाइन, तो अभी हम जो है ये एडीकॉन 1 भी है, ये जो बिट है एडीकॉन 1 जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है वो बैंक 1 में ही है। ओके, सो नाउ वी विल कम टू बैंक 0 नाउ, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो बैंक 0 में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक सिलेक्ट पोर्ट डी सो दैट यू विल कम टू बैंक 0। ओके, और इसमें अभी ये मेन प्रोग्राम हमारा रहेगा, इसमें क्या क्या कर रहे हैं, पहले रिजल्ट दोनों रजिस्टर को क्लियर करके रखते, फिर क्या करेंगे, कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, BSF ADCON 0, go. Can anyone tell me what will happen because of this instruction? What will be the result of this instruction? ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, बिट सेट फाइल। conversion, ओके, कन्वर्जन स्टार्ट होगा, दैट इज देयर, बट ये इंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली BSF इंस्ट्रक्शन का यूज क्या है, For setting the bit. yes, BSF is used to set a particular bit of the given file register। तो इसका यूज क्या है, BSF मींस ADCON 0 ये फाइल रजिस्टर है, इस फाइल रजिस्टर का गो वाला जो बिट है उसको सेट करो और उसकी वजह से कन्वर्जन स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने ADC मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर दिया, कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। अभी हमें चेक करना है कि कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है या नहीं, कंप्लीट हुआ है या नहीं। ओके, तो हाउ वी विल कम टू नो कि कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, तो यहां पे देखो ये दो बिट्स है, दो इंस्ट्रक्शंस है, बिट टेस्ट फाइल स्किप इफ क्लियर, स्किप इफ क्लियर, बिट क्या है, गो ऑब्लिक डन बार। अगर कन्वर्जन कंप्लीट है तो बिट 0 रहेगा, अगर कन्वर्जन गोइंग ऑन है तो ये बिट क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 है तो ये इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होगा, मींस गो टू वेट मींस ये कंटिन्यूअसली इसी लूप में रहेगा जब तक कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता है। सपोज आफ्टर फ्यू दैट मिलीसेकंड्स ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गया तो ये गो बिट 0 रहेगा, स्किप इफ क्लियर है, अगर 0 है तो क्लियर है तो स्किप करना है तो ये बाहर आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल पोल, यू विल चेक फॉर कन्वर्जन इज ओवर और नॉट। इससे बाहर आ गए तो कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है, कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है तो कन्वर्जन हमें क्या चाहिए, देखना है, कहां पे देखना है, पोर्ट डी पे देखना है, पोर्ट डी पे देखना है। तो हम क्या करेंगे, अभी रिजल्ट जो है हमारा ADRESH में अवेलेबल है, तो पहले यूज करेंगे मूव एफ, जो रिजल्ट है फाइल रजिस्टर से वर्किंग रजिस्टर में लिखेंगे, मूव एफ ADRESH W, एंड उसके बाद जो वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स है वो पोर्ट डी पे लिखेंगे। जब आप पोर्ट डी पे कंटेंट लिख रहे हो तो जो कंटेंट्स है वो आपको LED पे विजुअलाइज कर पाएंगे आप। ओके, इससे ये जब कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है तो ये फ्लैग बिट भी सेट होता है, लेकिन हम इंटरप्ट यूज नहीं कर रहे, फिर भी यहाँ पे इट इज गुड प्रैक्टिस कि उसको क्लियर कर दो। ओके, एंड देन ये एक कन्वर्जन हो गया तो उसके बाद क्या है, गो टू लूप, एंड लूप क्या है, फिर से यहाँ पे फिर से रिजल्ट रजिस्टर को क्लियर करो, फिर से कन्वर्जन स्टार्ट करो, वेट फॉर एंड ऑफ कन्वर्जन, एंड ऑफ कन्वर्जन हो गया तो रिजल्ट रीड करो, वो जो रिजल्ट है वो पोर्ट डी पे आउटपुट करो। तो इतना सिंपल प्रोग्राम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ADCON 0 ADCON 1 को कॉन्फ़िगर हमने कर दिया और उसके बाद सिर्फ क्या करना है, अभी ये एक्वेजिशन टाइम के लिए हमने प्रोग्राम नहीं लिखा है, लेकिन ये लूप में ये दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होने तक वो जो टाइम मिलता है दैट इज सफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड एज, दैट कैन बी यूज्ड एज अ एक्वेजिशन टाइम। ओके, तो एक कन्वर्जन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है सो उतना एक्वेजिशन टाइम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम है। ओके, सो ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने आपको जो PDF शेयर किए एक्सपेरिमेंट के उसमें भी है,
You can later refer that program, and I will be sharing this MPLAB-X file also with you. तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। अभी इसका आउटपुट हमें चेक करना है। आउटपुट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटियस में ये जो आपका प्रोग्राम है उसकी हेक्स फाइल लोड करनी है। तो ऑलरेडी वो हेक्स फाइल का पाथ यहाँ पे है। नाउ द थिंग इज यू रन दिस सिमुलेशन। ओके, अभी सिमुलेशन रन हो रहा है, सारे एलईडीज ऑफ है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने एनालॉग इनपुट वोल्टेज ये 0 ही रखा है। अभी मैं करूंगा कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज जो है मैं बढ़ाऊंगा, आई गो ऑन इंक्रीजिंग। ये देखो आपके एलईडीज ऑन हो रहे। अभी देखो ये एलईडीज जो है ये यहाँ से D5 ऑनवर्ड्स ऑन है। जैसे ही एनालॉग इनपुट बढ़ेगा, बढ़ने के बाद ये D6 ऑन होगा, उसके बाद D7 ऑन होगा। एंड सी, जब जैसे मैं एनालॉग इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो ये बिट्स बढ़ रहे। अभी देखो, सो लाइक दिस। अभी यहाँ पे ये सिचुएशन देखो, ये मैंने एनालॉग इनपुट वोल्टेज जो है ये अभी 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सारे एलईडीज क्या है, मींस कन्वर्जन क्या आ रहा है, ऑल वंस। ये वोल्टेज भी यहाँ पे दिख रहा है 4.99 मींस 5 वोल्ट। ओके, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओके, तो ये प्रोग्राम हमने लूप में लिखा है, लूप लिखा है, कंटिन्यूअसली चेक करते जाओ एनालॉग इनपुट क्या वोल्ट क्या है, उसके हिसाब से डिजिटल कन्वर्जन करते जाओ। तो ये कंटिन्यूअसली जब भी मैं चेंज कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये एलईडीज ऑन ऑफ हो रहे। अभी ये जो स्टेटस है यहाँ पे सारे एलईडीज ऑफ है, तो मैंने इनपुट वोल्टेज देखा तो इनपुट वोल्टेज क्या है, 0 है। हमने प्लस वी रेफरेंस माइनस वी रेफरेंस जो है वो जो इनबिल्ट माइक्रो कंट्रोलर सप्लाई वोल्टेज है वही यूज किए, इसलिए ये 0 to 5 वोल्ट में रिजल्ट जो है ऑल जीरोस टू ऑल वंस में वेरी हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes or no? Okay, so I will share you one more way of moving the output. Okay, अभी ये जो आउटपुट है और एक तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हो, और उसके लिए the what we can software installation required is PeakSimLab. ओके, ये PeakSimLab जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको इस टाइप का एक डिस्प्ले मिलेगा। आर यू एबल टू व्यू दिस डिस्प्ले? ये एक लैब में किसी किट की तरह लग रहा है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स के किट होते हैं, लाइक दैट ये वर्चुअल किट है। ओके, यस और नो? तो ये वर्चुअल किट में क्या क्या कंट्रोल्स है, ये देखो, उसको पावर का बटन रहता है, तो ये पावर का बटन है। मैंने अभी ये किट को ऑफ कर दिया, एलईडी ऑफ हो गया, एलसीडी ऑफ हो गया, सब ऑफ हो गए। इसको मैंने पावर का बटन फिर से दबा दिया तो ये ऑन हो गया। सी, इट इज जस्ट गिविंग यू इल्यूजन कि आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड है घर में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसमें आपके पास क्या है, पीक माइक्रो कंट्रोलर है। उसके बाद इसको स्टडी करने के लिए क्या क्या पेरिफेरल्स लगते हैं, सारे पेरिफेरल्स यहाँ पे दिए हुए। ओके, जैसे कि एलईडीज कनेक्ट करने हैं तो कुछ एलईडीज यहाँ पे कनेक्ट करके दिए, कीपैड कनेक्ट करना है तो कीपैड दिया है, 7 सेगमेंट दिया है, 7 सेगमेंट अगर चेक करना है। सिर्फ कीज है तो ये पुश बटन कीज दिए हैं। आपको बजर देखना है तो ये बजर है यहाँ पे। पीडब्ल्यूएम आउटपुट आपको देखना है तो यहाँ पे एक फैन दिया है, एलसीडी डिस्प्ले दिया है, यहाँ पे आपको रिलेज दिख रहे हैं, यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन आपको चेक करना है तो सीरियल कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी है। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल द पेरिफेरल्स आर अवेलेबल हियर वर्चुअली। इसको अगर हम प्रोटियस से कंपेयर करेंगे, इसको अगर हम प्रोटियस से कंपेयर करेंगे तो प्रोटियस में क्या करना पड़ता है, आपको कंपोनेंट ड्रैग करके उसके सारे इंटरकनेक्शंस करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किए। तो एडीसी का था तो मैंने पहले माइक्रो कंट्रोलर ले लिया, फिर सारे एलईडीज ले लिए, फिर सारे ये कनेक्शंस कर दिए। ओके, लेकिन PeakSimLab जब यूज करोगे तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओनली थिंग इज यू शुड नो कि इसका कनेक्टिविटी क्या है। अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो उसकी कनेक्टिविटी समझ में आनी चाहिए।
आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, इसका एक यूजर मैनुअल अवेलेबल है, यूजर मैनुअल अवेलेबल है। अभी बोर्ड जो अवेलेबल है फ्रीली अवेलेबल है, सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि ये ऐसा यूजफुल बोर्ड सिमुलेशन के लिए अवेलेबल है। यूजर मैनुअल भी है, फ्रीली अवेलेबल है। ओके, अगेन वी आर फॉर्चुनेट कि उसका मैनुअल भी अवेलेबल है। एक अनफॉर्चुनेट थिंग सिर्फ इतनी है कि ये जो मैनुअल अवेलेबल है ना, ये लैंग्वेज जो है, ये उसका शायद ये पोर्तुगीज लैंग्वेज है। ओके, सो किसी को आता है ये पोर्तुगीज लैंग्वेज? मुझे तो नहीं आता है। नो सर। ओके, तो ठीक है, लेकिन वो अभी ये बोर्ड सीखने के लिए वो लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आप सी, सीपीपी, जावा, पाइथन इतनी लैंग्वेजेस पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, सिर्फ इसका यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम जहां जहां पे दिए हैं, ये बोर्ड, ये जो यूजर मैनुअल है ना, उसका यूज हम करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने इंटर कनेक्शंस कैसे किए। ओके, लेट मी शो यू सम इंटर, राइट। जैसे कि यही, अभी जब हम एलसीडी का प्रोग्राम देखेंगे तो यहाँ पे एलसीडी कनेक्टेड है, लेकिन ये कैसे कनेक्ट किया, ये अगर आपको पता चल नहीं है तो आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो। ओके, तो मैनुअल का यूज हम सिर्फ ये कनेक्टिविटी कैसी है ये तो पता चलेगा। पोर्तुगीज में भी RD0 को RD0 ही बोलते हैं, फॉर्चुनेट है हम। उसको एनेबल को एनेबल ही बोलते हैं, RS को RS ही बोलते हैं। मींस ये इंग्लिश वर्ड एज इट इज उन्होंने यूज किए हैं, उसका कन्वर्जन नहीं किया है पोर्तुगीज में। ओके, फाइन। तो वी विल यूज, ये यूजफुल थिंग है अगर आपको ये बोर्ड यूज करना है। ओके, सो अभी सिर्फ बोर्ड की तरफ देखो कि क्या क्या पेरिफेरल्स आपको दिख रहे हैं, वन बाय वन यू कैन टेल क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। डिस्प्ले, फैन। या 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। सिर्फ वैष्णवी बोल रही है पूरे प्रेजेंटेशन में। इफ आई आस्क एनी क्वेश्चन, सिर्फ वैष्णवी। ऐसा आपने डिसाइड कर दिया है क्या कि आज का सेशन रहेगा सिर्फ वैष्णवी बोलेगी, बाकी सब म्यूट करके ही रखेंगे? ऐसा कुछ डिसीजन हुआ है क्या आपका? नहीं नहीं सर। या बाकी सारे लोगों के माइक खराब ही है जैसे मिताली का था? सर रिलेज नो है सर, सर। रिले है, ठीक है। सर एलईडी एलईडीज है। मिताली? एलईडी एलसीडी है। या, यस सर। कीपैड। मिताली का आंसर क्या है? स्विच। स्विच है, एलईडीज। एलईडीज है, स्विचेस है, फैन है, और पार्वती? आईसी और डिस्प्ले। आईसी ऑफ डिस्प्ले। आईसी ओके, 78052। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी ने नहीं बताया, ये बोर्ड में पीक माइक्रो कंट्रोलर है। सबसे बड़ा दिख रहा है पीक माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे। हाँ ये 16F877 हाँ माइक्रो सर। कंट्रोलर है। ये 2404 जो है ई स्क्वेयर प्रॉम है। ई स्क्वेयर प्रॉम आपने पढ़ा है, ई स्क्वेयर प्रॉम इंटरफेसिंग। उसके यस बाद सर। उसके बाद ये मैक्स 232 से सीरियल कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। ओके, इस साइड में देखो, यहाँ पे आपको पॉट्स दिख रहे हैं, इसका यूज हम करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे लिखा है पॉट P1 बोल के लिखा है। ये पॉट P1 जो है ये RA0 को कनेक्टेड है। जब आप वो मैनुअल पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये RA0 को कनेक्टेड है। अभी मेरा अभी का जो प्रोग्राम है उसमें भी RA0 को एनालॉग इनपुट ही कनेक्टेड है। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेक कि अभी ये जो प्रोग्राम है, अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा MPLAB X में, ये इस किट पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, तो एक एडवांटेज यहाँ का ये किट का ये है कि इस प्रोग्राम के लिए कि हम आउटपुट कहां पे देख रहे हैं, एडीसी का आउटपुट कहां पे देख रहे हैं?
पोर्ट डी पे देख रहे हैं, ओके, एंड पोर्ट डी को हमने प्रोटियस में एलईडीज कनेक्ट कर दिए थे। अभी ये बोर्ड में आप यहां पे देखो इस पार्ट में, तो ये सारे एलईडीज ऑलरेडी पोर्ट डी को कनेक्टेड है, ओके, तो एलईडीज आपके पास ऑलरेडी है। और एक कनेक्शन क्या था, आपको RA0 को एनालॉग इनपुट वोल्टेज देने का था, लेकिन ऑलरेडी ये जो पॉट है दिस इज गिविंग एनालॉग इनपुट वोल्टेज टू RA0 ओनली। तो प्रोटियस में जो आपको कनेक्शन करने थे ये एज इट इज कनेक्शन अभी इस बोर्ड में भी है। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी मैं क्या करूंगा, इस बोर्ड में वो अपनी हेक्स फाइल लोड करूंगा। जैसे प्रोटियस में हेक्स फाइल लोड करने के लिए हम क्या करते थे, यहां पे डबल क्लिक करो और उस हेक्स फाइल का पाथ दे दो उसको, ओके, प्रोटियस में ऐसे करते थे। लाइक दैट ये जो पिक सिम लैब सॉफ्टवेयर है, पिक सिम लैब सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको क्या करना है, कि फाइल और यहां पे लोड हेक्स ऑप्शन आएगा, फाइल लोड हेक्स, ओके, तो लोड हेक्स करो और यहां पे जो है, यहां पे जो है आपको आपके प्रोग्राम की हेक्स फाइल लोड करनी है। अभी हेक्स फाइल के लिए हमने MPLAB X फोल्डर में, मेरे सिस्टम पे ये फोल्डर में सारे फाइल्स है, तो ADC का फाइल है, ADC का हेक्स फाइल कहां पे रहेगा, कैन यू गाइड? अभी कहां पे क्लिक करना है इसके बाद, राइट, उसके बाद डिफॉल्ट प्रोडक्शन और उसमें ऑटोमेटिकली हेक्स फाइल आ जाएगी। तो ये हेक्स फाइल मैंने लोड कर दी, ठीक है। अभी जो है, अभी ये जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे ये जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज है ये 0, ये पॉट जो है मैंने 0 पे डाल दिया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारे एलईडीज ऑफ हो गए हैं, यस और नो? Yes. पोर्ट डी के एलईडी सारे ऑफ हो गए। अभी मैं क्या करूंगा, सर ग्रेजुअली ये सर P1 की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, ओके, तो ये देखो ये यहाँ पे D0 बिट है और ये जो है D7 बिट है, ओके, तो ग्रेजुअली जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो आपका डिजिटल कन्वर्जन क्या है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये देखो कन्वर्जन इंक्रीज हो रहा है, और जैसे मैंने ये पॉट की वैल्यू मैक्सिमम पे डाल दी, अभी देखो ये मैक्सिमम पोजीशन, ये आ गई मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे, तो ये सारे जो एलईडीज है ये ऑन है। मींस you can view the output on this board also very easily। प्रोटियस में तो आपको सर्किट तो ड्रॉ करना है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हेक्स फाइल लोड करो इस बोर्ड में। आर यू गेटिंग दिस? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. okay, so this is how you can view the output। ये बोर्ड सीखने जैसा कुछ नहीं है, जैसे आप लैब में बोर्ड यूज करते हो ऐसा बोर्ड है। यहाँ पे पावर बटन है, सिर्फ इसको ऑन करो, इसको सप्लाई भी देने की जरूरत नहीं है, ऑन हो जाएगा, ये वर्चुअल है। सिर्फ क्या करना है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसकी हेक्स फाइल यहाँ पे डालो। तो अभी हमने एडीसी की हेक्स फाइल डाली थी, तो ये एलईडीज ऑन ऑफ हो रहे बेस्ड ऑन एनालॉग इनपुट वोल्टेज, बराबर है। लाइक दैट मैंने इस और एक प्रोग्राम के लिए बोर्ड दिखाया था, कौन से प्रोग्राम के लिए दिखाया था? LCD display. PWM पीडब्ल्यूएम के लिए दिखाया था, गुड। तो पीडब्ल्यूएम का फिर से मैं दिखाता हूँ, पीडब्ल्यूएम की अगर मैं हेक्स फाइल अभी लोड करता हूँ तो ये फैन रोटेट हो रहा है, बराबर है, ओके। उसके बाद हमने और एक प्रोग्राम देखा था, कल प्रोग्राम लास्ट क्लास में देखा था, रिले का इंटरफेसिंग। रिले का इंटरफेसिंग याद है, उसमें क्या किया था, रिले पोर्ट बी को कनेक्टेड था अपना, और उस रिले को हम कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ करते थे विद द डिले ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड डिले से उसको कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ करते थे, यस और नो? उसको 7 सेगमेंट या ये रिले का प्रोग्राम है। अभी मैं रिले का प्रोग्राम ये किट पे डालता हूं,
अगर आपको याद है कि वो पोर्ट बी को हमने कनेक्ट किया था, यहाँ पे दिख रहा है पोर्ट बी ऑन ऑफ हो रहा है 1 सेकंड के रेट से। ओके, तो कोड में ये यहाँ पे ये जो रिले है, यहाँ पे अगर आपको आउटपुट देखना है तो कोड में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बट सिर्फ पोर्ट बी पे है ये आपको मालूम है, तो पोर्ट बी पे मैं आउटपुट देख रहा हूं तो ये ऑन ऑफ हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? लाइक दिस मीन्स यस सर। जब आपका एलसीडी का प्रोग्राम रहेगा तो एलसीडी का प्रोग्राम आप लिखोगे, एलसीडी का प्रोग्राम क्वाइट सिमिलर है जो हमने 8051 के लिए पढ़ा था, वैसा ही प्रोग्राम है। सो वो प्रोग्राम आप लिखो, उसकी हेक्स फाइल क्रिएट करो, एंड फिर से ये हेक्स फाइल अगर आप माइक्रो कंट्रोलर में ये लोड करोगे तो ये वर्चुअल माइक्रो कंट्रोलर जो है इसमें आपने जो मैसेज लिखा है वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आर यू गेटिंग दिस? इज इट इजी? प्रोटेस में क्या है, आपको सारा इंटरफेसिंग ड्रॉ करना पड़ता था, यहाँ पे आपको इंटरफेसिंग ड्रॉ करने का नहीं है, सिर्फ समझ के लेने का है, एंड यू नीड टू यूज दैट, यू नीड टू यूज दैट इंटरफेसिंग, सिर्फ हेक्स फाइल आपको लोड करके उसको यूज करना है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, सो ये जो है, ये हमने जो डिस्कस किया आज, ये जो प्रोग्राम था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का, एक्चुअली सिर्फ प्रोग्राम डिस्कस करना हार्डली 10 to 15 मिनट्स में हम कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन जब तक आपको ये एडीसी मॉड्यूल क्या है ये समझ में नहीं आता तो प्रोग्राम समझ में आना बहुत मुश्किल है। ओके, जब आपको एडीसी, सो दैट्स व्हाई अभी ये 1 घंटा लगा पूरा ये सेशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसमें हमने पहले क्या किया, डेटा शीट से पहले समझ के लिए कि ये एडीसी का मॉड्यूल क्या है। ओके, एंड देन वंस वी अंडरस्टैंड द एडीसी मॉड्यूल, then we have gone for the program for it. Are you getting this? Yes or no? Yes, sir. यस सर। Okay, now let Yes, me sir. do one thing. अभी आपको सारे participants दिख रहे हैं? What you are able to view? What you are able to Yes. view? Huh? Okay. Now let me do one thing. 34, sir. No, that 34 count just. Okay, that. Okay. Now I think you are able to view. ये जो 34 participants है अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, yes or no? यस सर। few participants next window में भी आएंगे, ठीक है। सो नाउ अभी हमने जो डिस्कस किया है इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ इंटरेक्शन अगर आपको करना है, वी कैन हैव दैट इंटरेक्शन फॉर 2-3 मिनट्स। एलसीडी का सिर्फ प्रोग्राम देखना है, सो एलसीडी का प्रोग्राम रिवीजन में आपको बताऊंगा, जस्ट बिफोर दैट भाई और एक चीज कि अभी फिर से ये सेशन जो है 1 आवर के लिए प्लान किया था, अभी 12:20 हो गए, मीन्स 20 मिनट्स अहेड। तो यू वांट टू कंटिन्यू फॉर एलसीडी प्रोग्राम डिस्कशन, वो प्रोग्राम हम सिर्फ इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे विद इन 5 मिनट्स।
ओके, बिफोर दैट अभी जिनको पॉसिबल है टर्न ऑन योर वीडियो ऑल्सो. I think you are able to view my video now. Okay, Yes, sir. Vaishnavi is there. Fine. Okay. See, just why I'm asking you to turn on the video, I want to check can we have video meet like this? Means अगर अभी सबके ऑडियोज ऑन है ठीक है, एक दूसरे को सुन सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑन है तो वीडियो इंटरेक्शन क्या हम कर सकते हैं? आकाश इज देयर, फाइन. गिरिराज आई एम फाइंडिंग. May I know who is this SA? वेबएक्स पे उन्होंने नाम SA लिखा है. आई एम फाइंडिंग जस्ट SA. I think you are from regular class. Sonali? Okay. Hi गिरिराज. समझते का? अंकिता is there. गिरिराज ऑडिओ येत नाहीये. नाही, माइक ऑन करायला Mute लागेल असेल ते त्यासाठी. म्यूट आहे. हा. वैष्णवी कलशेट्टी दिसते. ठीक आहे, काही जणांचे चेहरे बघितल्यानंतर खरंच माणसांना शिकवते असं काहीतरी फिलिंग मला पण येईल. म्हणजे अदरवाईज सगळ्यांचे चेहरे तर ऑफ आहेत, बोलताय तुम्ही ठीक आहे, पण मग चेहरे सगळ्यांचे ऑफ असतील तर मग खरंच मुलं ऐकतायत का फक्त मीटिंग जॉईन करून बाकी दुसरं काम करत बसलेत? नाही सर. ऐकतायत. आणि मग बाकीच्यांचं मेकअप किंवा वगैरे काही नसेल त्यामुळे ते कदाचित कॅमेरा ऑन करत नाहीयेत. ठीक आहे. ओके, लेट इट बी. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण थोडस ऑडिओ व्हिडिओ मीटिंग पण आपण काही करू शकतो. ठीक आहे. अंजली आहे. सो अंजली ऍक्टिव्हली ऑलमोस्ट ऑल सेशन अटेंड करते. दॅट इज व्हॉट आय एम फाइंडिंग. Sir, today Anjali's birthday, Hello. sir. अरे वा, टुडे इज हर बर्थडे. सो लेट अस हॅव सेलिब्रेशन, ऑनलाईन Yes, sir. सेलिब्रेशन. ठीक Happy आहे. birthday. हॅपी बर्थडे अंजली. Wish you happy birthday, Anjali. Wish you happy birthday. येस, हॅपी बर्थडे. आपण सगळे अंजलीला केक पाठवूयात व्हॉट्सअप वरती, आणि मग तुम्हाला काय पाहिजे ते सांगा, त्याचे फोटो ती तुम्हाला व्हॉट्सअप वर पाठवेल. ओके Okay, sir. ओके ओके. हॅपी बर्थडे अंजली. Thank you, sir. ओके, सो दिस वॉज जस्ट अ चेक की व्हिडिओ ऑडिओ कशा पद्धतीने. अजून कुणाचा बर्थडे आहे का चुकून? म्हणजे असेल तर सांगा, म्हणजे माहित नाही. ऋतिका रेस. टीका ऋतिक- रेस. ऋतिकाचा पण बर्थडे आज, हो सर, रेस. Yes, sir. पण ती जॉईन आहे का आता? मीट मध्ये आहे का? यस सर, आहे. कुठे आहे ऋतिका? असेल तर बघ, व्हिडिओ पॉसिबल असेल तर ऑन करता येतो का? Yes. ओके, सो फाईन.
सो आहे ऋतिका आहे. सो विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे ऋतिका. हॅपी बर्थडे. Thank you, sir. येस. ओके. सो नाव अगेन. राईट. ठीक आहे, ऑडिओने विश करू शकता सगळे ऋतिकाला, म्हणजे तुमचा ऑडिओ तिला ऐकू जातोय. हॅपी बर्थडे हॅपी ऋतिका. बर्थडे ऋतिका. हॅपी बर्थडे ऋतिका. 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 हॅपी विश करा, बर्थडे. म्हणजे लॉकडाऊन नंतर तरी ती तुम्हाला पार्टी देईल. म्हणजे एवढ्या लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा तुम्ही विश करताय म्हणल्यानंतर स्पेशल अप्रिशिएशन म्हणून तुम्हाला काही तर पार्टी वगैरे देईल असं त्याच्या डोक्यात आहे. काय विश करा. ओके. सो ठीक आहे. सो थोडासा ब्रेक डिस्कशन मधनं. नाव व्हॉट वी विल डू इज ब्रीफ मध्ये वी विल डिस्कस द प्रोग्राम फॉर LCD इंटरफेसिंग. आता LCD इंटरफेसिंगचा प्रोग्राम 8051 मायक्रो कंट्रोलर मध्ये ज्या पद्धतीने लिहिला होता, इट इज क्वाइट सिमिलर. ओके. सो कॅन यू रिकॉल राधा, प्लीज म्यूट युअर माइक. Can you recall Yes, sir. which are the pins available for the LCD? LCD आपण जो 16:2 LCD कनेक्ट केला होता मायक्रो कंट्रोलरला, काय पिन्स होते त्याचे? Which pins we were using? So if you recall, the pins were like D0 to D7 pins होते डेटा सेंड करण्यासाठी. Then LCD ला either you will be giving command or data, आणि हा कमांड आहे का डेटा आहे हे सिलेक्ट करण्यासाठी एक पिन होती RS, रजिस्टर सिलेक्ट. RS पिन ज्या वेळेला आपण 0 करतो तर कमांड रजिस्टर गेट सिलेक्टेड. when we make RS is equal to 1, when we make RS is equal to 1, the data register is selected. Okay. So RS एक पिन होती, D0 to D7 पिन्स होते. What else? There was one more pin called as R/W bar, read/write bar. जर LCD ला तुम्हाला राईट करायचं असेल तर ती पिन ग्राउंडला कनेक्ट करायची. LCD जर रीड करायचं असेल, आणि रीड कधी करतो आपण, बिझी फ्लॅग हा जो फीचर आहे एडीसीचा तो यूज करायचा असेल तर रीड करतो. पण नॉर्मली आपण बिझी फ्लॅग यूज केला नव्हता लास्ट प्रोग्राम मध्ये, पण या प्रोग्राम मध्ये पण आपण करत नाहीये. त्यामुळं दॅट R/W बार ही जी पिन आहे ती आपण ग्राउंडला कनेक्ट करणार आहे, म्हणजे फक्त आपण राईट करणार आहे LCD ला. ठीक आहे. अजून एक पिन मिसिंग आहे. कॅन एनीवन रिकॉल? कुठली पिन होती एडीसीची, सॉरी LCD ची? D0 to D7 डेटा पिन्स, RS पिन, रीड/राईट बार, आणि अजून एक पिन आहे. Enable pin, sir. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे लक्षात आहे बऱ्याच लोकांच्या 8051 मायक्रो कंट्रोलर पण लक्षात आहे. वैष्णवीला कॉल आलाय बहुतेक. हा. सो ठीक आहे, काहीतरी म्युझिक येत आहे, म्हणजे आपलं सेशन अगदी बॅकग्राऊंड म्युझिक मध्ये चाललंय असं वाटायला मला तर. ठीक आहे. एनेबल एक पिन होती एडीसीची. ओके. सो सॉरी LCD ची एनेबल एक पिन होती. एवढ्याच पिन्स, म्हणजे D0 to D7 डेटासाठी, RS रजिस्टर सिलेक्ट साठी, RW रीड किंवा राईट करायचे डिसाइड करण्यासाठी, आणि एनेबल म्हणजे ते त्या पिनवरती आपण हाय टू लो पल्स देत होतो, म्हणजे डेटा राईट करण्यासाठी. ओके. आणि देन देर वर टू थिंग्स, कमांड अँड डेटा. म्हणजे पहिल्यांदा LCD कमांड्स आपण सेंड करून LCD ला कॉन्फिगर करतो, आणि देन व्हॉट डेटा यू वॉन्ट टू डिस्प्ले तो डेटा आपण आउटपुट करतो. ओके. सी वन मोर चेंज यू विल फाइंड की आतापर्यंत आपण जे प्रोग्राम्स बघितले, ऑल दोज प्रोग्राम्स वेर इन असेंब्ली लँग्वेज. हा जो प्रोग्राम तुम्हाला शेअर केलेला आहे, दिस प्रोग्राम इज इन सी लँग्वेज. ओके. सी प्रोग्राम आहे, त्याच्यामध्ये परत सेम प्रोसेस. हॅलो,
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो हा तुमचा कॉन्फिगरेशन वर्डचा पार्ट आहे जो की डायरेक्टली ऑटोमॅटिकली जनरेट झालेला असतो. हा इनिशियली आपण कॉपी केला. त्याच्यानंतर तुमच्या जे पिन्स आहे, एनेबल एक पिन आहे आणि RS पिन आहे. हे डिसाइड केलं की एनेबल पिन जी आहे आपण RE1 पोर्ट ई च्या पिन नंबर 1 ला कनेक्ट करतोय. RS पिन जी आहे रजिस्टर सिलेक्ट ही जी पिन आहे ही पोर्ट ई च्या पिन नंबर 2 ला कनेक्ट करतोय आणि LCD चे D0 टू D7 जे आहे ते पीक मायक्रो कंट्रोलरच्या पोर्ट डी ला कनेक्ट करतोय. हे आपण इंटरफेसिंग करतोय. सो क्वाइट सिंपल इंटरफेसिंग इट इज. सो आउटपुट ऑफ मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे जे डेटा किंवा कमांड आहे ते पोर्ट डी ला कनेक्ट केले. देन एनेबल पिन RE1 ला कनेक्ट केले. RS पिन RE2 ला कनेक्ट केले. ठीक आहे. इन बिटवीन वैष्णवी प्लीज म्यूट युअर माइक. कोणीतरी बाजूला आहे तो बॅकग्राऊंड म्युझिक देऊ लागलाय तुझ्या माइक मधनं. ओके. सो आपल्याला माहिती आहे की दोन कमांड्स मध्ये किंवा दोन डेटा मध्ये काहीतरी डिले पाहिजे. बिकॉज इट्स लाईक वेन यू आर गिव्हिंग द कमांड टू द एलसीडी मध्ये एक छोटा मायक्रो कंट्रोलर आहे अँड इट एक्झिक्यूट दॅट कमांड आणि त्याच्या एक्झिक्युशन साठी काही टाइम लागतो. ओके. सो वेन यू आर गिव्हिंग सम डेटा और वेन यू आर गिव्हिंग सम कमांड टू द एलसीडी वी विल रिक्वायर डिले ऑल्सो. हे पहिलं पिन कॉन्फिगरेशन. इथं आपण पहिलं पिन कॉन्फिगरेशन करून घेतले. एक डिलेचा प्रोग्राम आपण लिहिणार. ओके. सो दिस इज अ क्वाइट स्टँडर्ड डिले प्रोग्राम. देन वी विल हॅव टू फंक्शन्स. एक आहे LCD कमांड आणि दुसरा आहे LCD डेटा. ओके. आणि LCD कमांड आणि LCD डेटा या फंक्शन मध्ये फक्त चेंज एवढाच आहे की LCD कमांड जर असेल तर RS वी मेक इट 0 कारण कमांड रजिस्टर सिलेक्ट करायला पाहिजे. आणि हेच खाली जर LCD डेटा असेल तर वी मेक RS इज इक्वल टू 1. ओके. So RS is equal to 1 means data register will be selected. RS is equal to 0 means command register will be selected. ठीक आहे. जो काही आपल्याला डिस्प्ले कमांड किंवा व्हॅल्यू सेंड करायची ती व्हॅल्यू आपण या फंक्शनला पास करणार. समजा आपल्याला एक कॅरेक्टर डिस्प्ले करायचे W तर आपण W ची ASCII व्हॅल्यू इथं पास करणार. ती व्हॅल्यू L डेटाला जाणार. L डेटा इज नथिंग बट पोर्ट डी. पोर्ट डी ला तुमच्या LCD च्या डेटा लेन्स कनेक्टेड आहे. ओके. इट इज क्वाइट सिमिलर 8051 चा आपण जसा प्रोग्राम बघितला इट इज क्वाइट सिमिलर. LCD कमांड म्हणून एक फंक्शन आपण लिहिलेलं आहे. LCD डेटा म्हणून एक फंक्शन लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला जी व्हॅल्यू डेटा म्हणून सेंड करायची आपण LCD डेटा या फंक्शनला ती व्हॅल्यू पास करणार. जी व्हॅल्यू कमांड म्हणून सेंड करायची ती व्हॅल्यू आपण LCD कमांड या फंक्शनला पास करणार. ओके. हे दोन फंक्शन झाल्यानंतर सिंपल आपला मॅटलॅब ह्याचा मेन प्रोग्राम ज्याच्यामध्ये पोर्ट डी आपण कॉन्फिगर केले आउटपुट म्हणून कारण सर्व पोर्ट्स आउटपुट म्हणूनच कॉन्फिगर करावे लागतील. पोर्ट डी आणि पोर्ट ई यूज केलाय दोन्ही आउटपुट म्हणून कॉन्फिगर केलेले. आणि मग बघा हे LCD कमांड सुरुवातीला सेंड केले. 38 म्हणजे 16:2 LCD आहे. 0E म्हणजे डिस्प्ले ऑन पाहिजे कर्सर पण ऑन पाहिजे. LCD कमांड 01 त्याच्यामुळे काय होईल जे अगोदर काही डिस्प्ले होत आहे ते सगळं क्लिअर केलं जाईल. LCD कमांड 06 त्याच्यामुळे एंट्री मोडला जाईल कर्सर फर्स्ट पॉइंटला. त्याच्यानंतर LCD कमांड 84 मुळे काय होईल जे काही आपल्याला डिस्प्ले करायचंय ते फर्स्ट लाईनला फोर्थ पोझिशनला जाईल कर्सर आणि तिथपासून डिस्प्ले व्हायला लागेल. म्हणजे या सुरुवातीच्या सगळ्या आपण LCD कमांड दिल्या आणि त्याच्यानंतर जे काही तुम्हाला डिस्प्ले करायचंय ते कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर. मग याच्यामध्ये मी LCD डेटा इथपर्यंत आपण LCD कमांड फंक्शन कॉल करत होतो. इथनं LCD डेटा फंक्शन कॉल करतो. LCD डेटा V म्हणजे V ची ASCII व्हॅल्यू पास झाली म्हणजे LCD वरती तुम्हाला काय दिसेल V दिसेल. सो लाईक दॅट दिस VIRAJ विराज हे नाव आहे. तर हे आपण डिस्प्ले करतोय. ओके. आणि मग शेवटी सगळ्यात राहतं की डिले आपण वरती फक्त डिफाईन केलं होतं. मग इथं टोटल फंक्शन आपण डिक्लेअर करतोय की डिले फंक्शन काय आणि हे पण स्टँडर्ड फंक्शन जे आपण 8051 साठी प्रोग्राम डिलेचा लिहिला होता इट इज वन अँड द सेम. ओके. सेम लॉजिक सेम व्हॉट वी कॅन से पिन कनेक्शन
तिथं फक्त LCD was connected to 8051. Here it is connected to the PIC microcontroller. Okay, so this C program is also shared with you. This C program is also shared with you आणि it is very easy. म्हणजे याचा आउटपुट बघण्यासाठी परत तुम्ही तीच प्रोसिजर करणार. याचा हेक्स फाईल तयार करा, बिल्ड clean and build. And then finally what you have to do is you have to just I will show you the result कारण इकडे एक्झिक्यूट व्हायला टाइम लागतो. आपण तो जो प्रोग्राम लिहिला तो प्रोग्रामची हेक्स फाईल फक्त इथे ऍड केली की प्रोग्राम मध्ये आपण जे मेसेज लिहिला होता तो मेसेज तुम्हाला डिस्प्ले होईल. ओके, हे जस्ट हा जो डिस्प्ले आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला प्ले होतोय, हा तुम्हाला इथं दिसेल की कालच रेकॉर्ड केलेला आहे व्हिडिओ डिस्प्ले होताना. Okay, so this is how you can view the output of the LCD also very easily. No need to have any interface diagram like Proteus. So directly just use this PIC SimLab and you can view the output. So this is all about the program for LCD interface. So थोड़ा fast अपन discuss केला LCD interface, but already we have discussed these things in semester 1 for 8051 microcontroller. So this is all about the today's discussion. So two programs we have discussed today. One is based on the interfacing of ADC, rather internal ADC use kela, and second thing is we have used this LCD program to view the output. So these are the two programs. So if you check your lab experiment list, so almost important programs we have covered. We have covered USART program, we have covered PWM program, we have covered that relay program where we have generated delay by using timer. Then we have covered that 7-segment program where we have used this particular timer as a counter. And then today we have discussed this LCD as well. We have discussed the ADC part. Keyboard we have discussed. So 7 programs we have discussed, and remaining programs are rather very simple. Like one program is addition of 16-bit numbers, then multiplication, division. So when the semester was going on, so already we have covered, and almost all batches have done the practicals also. Okay, so now I think there should not be any issue in understanding the laboratory experiments for this particular course, microcontroller 2. Okay, so already I have shared, again I will share all the program as well as the simulation files with you onto the Google Classroom so that you can refer it for your use. Okay, so somehow I have extended, but I कि आज complete करना ही था LCD and that internal ADC part. So still I am finding 20 at least participants are here. Okay, so if you have any doubt in this or any suggestion, you can ping that onto your class WhatsApp group. Okay, यहाँ पे भी chat box में अगर आपकी कुछ suggestion है तो आप लिखो, and if अगर कुछ suggestions नहीं है, so for today we will stop here. Okay, so thank you all. Again, be at your home, be safe, take care of your health as well health of your family members. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, thank you.